وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاکستان ایران تعلقات پر اجلاس، دو طرفہ تعاون کا تفصیلی جائزہ، پاکستان اور ایران کے اقتصادی اور تجارتی روابط پر غور، ایران کے ساتھ ترجیحی شعبوں میں روابط مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ اجلاس میں وزیر پیٹرولیم اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وزیر خارجہ نے کہا پاکستان ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ وفاقی کابینہ کی اسلام آباد میں شیڈول بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی منظوری، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے وفاقی کابینہ کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق بریفنگ۔ اسلام آباد میں پنجاب طرز کی بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کی بھی منظوری، کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے کی 3 دسمبر اور 30 دسمبر کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق۔ وزیر اعظم کا بیانیہ کے اراکین کے نئے سال کی مبارکباد، پی آئی اے کے 75% شیئرز کی کامیابی نجکاری پر اطمینان کا اظہار۔ انہوں نے کہا یہ حکومت کے معاشی اصلاحات کے ویژن کا اہم سنگ میل ہے۔ حکومت نے اپنی شکست دیکھتے ہوئے بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے، بار بار انتخابات مؤخر کر کے اسلام آباد کے عوام کے بنیادی حقوق پر خون مارا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی اسلام آباد نصر اللہ رندھاوا کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے حکومتی فیصلے کی شدید مذمت، کہا حکومت فوری طور پر اپنا فیصلہ واپس لے، بصورت دیگر عوام بھرپور تحریک چلائیں گے۔ بولے اتوار کو اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ نئے سال کا دوسرا روز اسٹاک مارکیٹ کی پھر اونچی اڑان، انڈیکس نے تاریخ کے بلند ترین سطح پر ٹریڈ اور بند ہونے کے 2 نئے ریکارڈ قائم کر لیے۔ 100 انڈیکس ٹریڈنگ کے اختتام 2679 پوائنٹس اضافے کے پہلی بار 1,79,074 پوائنٹس پر ہوا۔ اسٹاک ایکسچینج میں دوران ٹریڈنگ ریکارڈ تیزی سے 1,77,000، 1,78,000 اور 1,79,000 کی حد عبور ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس کے 1,79,000 پوائنٹس کی سطح عبور کرنے پر اظہار اطمینان، کہا ملک کی ترقی کا سفر معاشی ٹیم کی انتھک محنت اور کی بدولت جاری اور ساری ہے۔ سعودی عرب کی دعوت پر پاکستان رواں ماہ ریاض میں ہونے والے فیوچر منرلز فورم میں شرکت کرے گا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات، معدنیات اور توانائی کے شعبے میں 2 طرفہ تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاکستان فیوچر منرلز فورم میں پاکستان دا منرل مارول کے نام سے اپنا خصوصی پویلین قائم کرے گا، جہاں ملک کے معدنی وسائل کی وسیع صلاحیت کو اجاگر کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی گفتگو، کہا پاکستان کی 13 سرکاری اور نجی منرل کمپنیاں فورم میں شرکت کریں گی۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا فیوچر منرلز فورم میں پاکستان کی شرکت کا خیر مقدم، کہا یہ فورم معدنیات کے شعبے میں تعاون کے نئے راستے کھولے گا۔ بلو اکنامی پاکستان کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے، تاہم 1000 کلومیٹر طویل ساحل اور وسیع سمندر حدود کے باوجود اس شعبے کی مکمل صلاحیت استعمال نہیں کی جا سکتی۔ بلو اکنامی سے متعلق اجلاس سے وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر احسن اقبال کا خطاب، کہا گوادر اور کراچی پورٹس کو وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط کے لیے ترقی دی جا رہی ہے، ماہی گیر کے ساتھ ساتھ پروسیسنگ، برانڈز اور مارکیٹنگ پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ بولے اڑان پاکستان کے تحت بلو اکانومی کو قومی ترقی کا اسٹریٹجک ستون بنایا جائے گا، تمام میری ٹائم پروجیکٹس کے لیے مربوط اور حل مرکوز حکمت عملی اپنانے پر غور۔ دنیا بھر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب آ چکا ہے، ہمارے نوجوان اتنے قابل ہیں کہ کمال کا ہنر موجود ہے، وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ نوجوان اپنا ہنر سامنے نہیں لا پاتے۔ لاہور میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا آج کی دنیا تبدیل ہو چکی ہے، شعبہ آئی ٹی میں انقلاب نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے، خواہش ہے کوئی بچہ آئی ٹی کی ٹریننگ سے محروم نہ رہے۔ انٹرنیٹ کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پرعزم ہے، ہماری کوشش رہی ہے کہ انٹرنیٹ کے کم سے کم مسائل ہوں۔ ٹیلی کام سیکٹر کے حوالے سے خوشخبریاں ہیں۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ کی نیوز کانفرنس سے خطاب، کہا 274 میگا ہرٹز اسپیکٹرم پورا ملک چلتا ہے، پچھلے کئی سال سے اسپیکٹرم آکشن نہیں ہوا، اگلے ماہ اسپیکٹرم آکشن کریں گے۔
CSA लाहौर के 136 प्रोबेशनरी अफसरों की चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अफसरान से पार्लिमानी जमहूरियत, आइन और ताकत की तकसीम के उसूलों पर रोशनी डाली। अदलिया, मुक़न्नना और इंतजामिया के बाहिमी तकमीली किरदार की अहमियत पर जोर। चीफ जस्टिस ने बताया कि अगस्त 2026 तक अदालतों में सोलर तवानाई के निज़ाम, ई लाइब्रेरी, साफ पानी और ख़वातीन के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। हमारी हुकूमत 11 नवंबर को कायम हुई थी। सियासी निज़ाम पर अवाम का एतमाद एक बार फिर बहाल हुआ। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिक हुकूमत के दौर में अवाम और हुक्मरानों के दरमियान फैसले बढ़ गए थे, जिसके बायस लोग सड़कों पर निकले और मुख्तलिफ तहरीक ने जन्म लिया। आज़ाद कश्मीर किसी भी किस्म की अफरा तफरी या का मुहतसल नहीं हो सकता। हुकूमत अवाम के मसाइल को हल, निज़ाम की बेहतरी के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान का अबनाए ताइवान पर चीन के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का ऐलान। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंदरावी ने कहा कि पाकिस्तान चीन को अपना आहीनी दोस्त और हर मौसम का तस्वीराती शराकतदार समझता है। पाकिस्तान चीन के बुनियादी कौमी मफादात से मुतालिक तमाम मामलात पर अपनी मुस्तकिल और गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इरादा करता है, जिनमें ताइवान भी शामिल है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि वन चाइना पॉलिसी की पासदारी आइंदा भी जारी रहेगी। सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान और हेडक्वार्टर्स 12 कोर कोयटा का इक़दाम ऐसा एक और काबिल तारीफ है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, हम सब कौम की सतह पर मुश्तरका अज़म रखते हैं। कौमी यकजहती को मजबूत बनाने के साथ बाखबर क़यादत को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। बलूचिस्तान खत्ते के लिए जियो स्ट्रेटजिक और साहिली एतबार से अहमियत का हामिल है। इलाकाई राबता कारी में भी कलीदी मकाम रखता है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुल्क की सलामती और तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। रेंजर्स सिंध ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पास आउट कैडेट से खिताब। कहा, तरबियत मुकम्मल करने पर बहादुर नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रेंजर्स सिंध ने माजी में कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। रेंजर्स सिंध पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकों का खात्मा कर रही है। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में रेंजर्स सिंध ने पाक फौज के साथ मिलकर सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया। वो रेंजर्स के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FBI फील्ड फॉर्मेशन से खिताब। रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FBI की कारकर्दगी को सराहा। टैक्स नेट मज़ीद वसी करने पर जोर। ब्रीफिंग में बताया गया कि दिसंबर में टैक्स वसूली 1427 अरब रुपए रिकॉर्ड हुई। नवंबर के मुकाबले में टैक्स वसूली 59% में इजाफा हुआ। इनकम टैक्स में 107, सेल्स टैक्स में 25%, फील्ड एक्साइज ड्यूटी में 6% इजाफा हुआ। कस्टम ड्यूटी की वसूली 118 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई। कराची के बाद बलूचिस्तान में भी खवातीन और तालिबात के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज। ये सर्विस खवातीन और तालिबात की आमदोरफ्त को महफूज और बवक़ार बनाएगी। पिंक बस सर्विस का दायरा काम मुस्तकबिल में दीगर अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बूटी का तकरीब से खिताब। कहा, पिंक बस सर्विस खवातीन को तालीम, रोजगार और सेहत तक आसान रसाई देगी। महफूज ट्रांसपोर्ट निज़ाम इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। बलूचिस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमले इक़दामात जारी हैं। आलमी मालियाती आदाद शुमार के लिए मुस्तनद तरीन इदारा ब्लू मुबर्रिक ने पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में कीमतों के इस्तेहकाम और मुआशी निज़ाम बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात-ए-ज़द 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम। ख्वार के कीमतों में दबाव के हुआ। ग़ज़ाए अफराद के 3.24% तक हदूद रहा। कीमतों के इस्तेहकाम ने सरमायाकारी के माहौल के लिए मुस्बत संगी मील दिया।
सुथरा पंजाब प्रोग्राम पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान हासिल कर चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब के सफाई के इक़दामात दीगर सूबों के लिए भी मिसाल बन रहे हैं। सिंध हुकूमत इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होना चाहती है। पंजाब हुकूमत ने कूड़े को बायोगैस में तब्दील करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने भी सुथरा पंजाब मॉडल की तफसीलात तलब कर ली हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, मॉडल विलेज और पंजाब डेवलपमेंट प्लान कामयाब मंसूबे हैं। पंजाब दीगर सूबों की मदद करके उन्हें भी बेहतरीन सहूलियात फराहम करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और नए IG सिंध जावेद आलम भुट्टो के अलग अलग मुलाकात में सिंध की मजमूई इंतजामी सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबे को दरपेश चैलेंजेस, गवर्नेंस, तरक्याती उमूर और पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। IG सिंध के सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाए अमल में से मुतालिक बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग, जराइम की रोकथाम, पुलिस इस्लाहात और अमन व अमान के क़याम के लिए इक़दामात पर भी बातचीत हुई। सिंध हुकूमत का कराची में मुनहदिम और ख़तरनाक इमारतों के रिहायशियों को महफूज रिहाइश फराहम करने का फैसला। ख़तरनाक इमारतों को खाली कराने और इन्हदाम के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे ताकि शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। फैसले के मुताबिक जो इमारतें पहले ही खाली कराई जा चुकी हैं उन्हें मिसमार किया जाएगा। मुतासरा रिहायशों की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। शहर भर में मौजूद 588 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 471 का सर्वे असिस्टेंट कमिश्नर्स मुकम्मल कर चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिविल एविएशन राब्तों की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। इब्तदाई तौर पर बेईमान बांग्लादेश एयरलाइन को 30 मार्च 2026 तक परवाज़ों की इजाज़त दी जाएगी। बांग्लादेश एयरलाइन को मंजूर शुदा रूट्स के ज़रिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल की इजाज़त होगी। बेईमान एयरलाइन को कराची एयरपोर्ट पर स्लॉट की मंजूरी भी दी गई है। ढाका से रवानगी से कबल फ़्लाइट की मंजूरी मुकम्मल मालूमात कराची एयरपोर्ट इंतज़ामिया को फराहम न करना होगी। ज़ेरे इल्तिवा मंसूबों की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की सिंध जाम खान चोरू की ज़ेरे सदारत इजलास। दादू और बदीन अजला की तरक्याती स्कीमों का जायजा। जिला बदीन के ताल्लुका अस्पताल तलहार के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। दादू में पीने के पानी और ड्रेनेज के मसाइल को 1 माह के अंदर हल करने का हदफ मुकर्रर। सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की भी ब्रीफिंग। यकीन दहानी कराई कि तमाम ज़ेरे इल्तिवा स्कीमें जल्द मुकम्मल की जाएंगी।